آغاز میں آپ کو خبر دیں، پاکستان میں کورونا سے متاثرہ مریضوں میں کمی آنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 40 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 1,78,735 افراد صحتیاب ہو چکے، جبکہ ملک میں 2,145 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں کمی، گھنٹوں کے دوران 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانیں گے سجاد قاسمی سے۔ سجاد، ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان میں کورونا کی ٹیسٹنگ میں دوبارہ سے بھی تیزی آنا شروع ہوئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہے 24,262 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو کیسز کی تعداد ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں مجموعی طور پر جو پچھلے 24 گھنٹوں میں نظر آئے ہیں وہ 2,145 نئے کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور اب مجموعی جو تعداد ہے کورونا کیسز کی وہ بڑھ کر 2,57,914 تک جا پہنچی ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے 24 گھنٹوں میں جو پچھلے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ 24,262 ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو کیسز اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ سندھ سے سامنے ہیں، جہاں سے 1,08,913 کیسز اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پنجاب ہے، جہاں سے 88,539 کیسز اب تک کنفرم ہوئے ہیں مجموعی طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا جو ہے وہاں سے جو ہے 31,000 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ بلوچستان سے 11,322 کیسز اب تک ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ اسلام آباد سے بھی مسلسل کیسز میں اضافہ جاری ہے، اور 14,402 اب تک کنفرمیشن کیسز کی ہو چکی ہے مجموعی طور پر۔ اس طرح گلگت بلتستان سے بھی اب تک جو کیسز مجموعی طور پر ریکارڈ ہوئے وہ 1,750 ہیں، اور اس کے بعد آزاد کشمیر ہے، جہاں سے اب تک جو مجموعی تعداد ہے 1,771 تک جو کیسز ہیں وہ وہاں سے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اور ملک بھر میں اموات کی تعداد میں جو ہے وہ بھی ان میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جو پچھلے گزشتہ روز 59 اموات ہوئی تھی، لیکن آج جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 40 اموات ہی ریکارڈ ہو سکی ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ سجاد قاسمی۔ پر سندھ حکومت نے 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن میں 15 اگست تک توسیع کی گئی ہے۔ عوامی مقامات اور پارکس بھی 15 اگست تک بند رہیں گے، جبکہ سنیما ہالز کو مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھا جائے گا۔ کورونا کی صورتحال میں لاک ڈاؤن کے معاملے پر سندھ حکومت نے 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن میں 15 اگست تک کی توسیع کی گئی ہے۔ عوامی مقامات اور پارکس بھی 15 اگست تک بند رہیں گے، جبکہ سنیما ہالز کو مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مزارات اور تمام اقسام کی تقریبات بھی 1 ماہ کے لیے مکمل طور پر بند ہوں گی، جبکہ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بھی مزید 1 ماہ بند رہے گی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے KPK اور بلوچستان حکومت لاک ڈاؤن میں مزید اضافہ کر چکی ہے۔ بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی، جبکہ پشاور کے مزید 3 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ پشاور میں کورونا وائرس پھیلنے کے خدشے کے تحت ڈپٹی کمشنر محمد علی اصغر نے مزید 3 علاقوں گل بہار نمبر 3، ریگی بدزئی، باقر خیل، حسن خیل میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن 1 روز پہلے جاری کر دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات کی روشنی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران متاثرہ علاقوں کے انٹری پوائنٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم شہریوں کی سہولت کے لیے اشیاء خورنوش، ادویات، جنرل سٹور، تندور اور ایمرجنسی سروس کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ متاثرہ علاقوں کے لیے جاری نئے SOP کے تحت مساجد میں صرف 5 افراد کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے مختلف علاقوں میں عمل درآمد کے لیے تعینات کیا ہے۔ ان کو سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ادھر بلوچستان میں کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر صوبائی حکومت نے لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندیاں 30 جولائی تک برقرار رہیں گی۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ دنیا کورونا کے خلاف جیتنے لگی، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور روس میں کورونا ویکسین کے کامیاب ٹرائل کے دعووں کے بعد مہلک وائرس سے بچاؤ کی امیدیں بڑھنے لگی ہیں۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین اور فارما کمپنی آسٹرازینیا کے اشتراک سے بنائی گئی ویکسین کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ویکسین مریضوں میں اینٹی باڈیز اور ٹی سیلز پیدا کرنے میں کامیاب رہی۔ برطانوی سائنسدانوں نے اس 80% امید ظاہر کی کہ کورونا کے خلاف ویکسین ستمبر تک آ جائے گی۔ امریکی دوا ساز کمپنی موڈرنا کا کہنا ہے کہ ان کی تیار کردہ کورونا ویکسین 27 جولائی سے انسانوں پر تجربے کے آخری مراحل میں داخل ہو جائے گی۔ روسی فوج نے بھی محفوظ ویکسین کے کامیاب انسانی ٹرائل کا دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی ویکسین کے بارے میں کوئی دعویٰ ابھی قبل از وقت ہے۔ نیا پاکستان سولرائزیشن پروگرام پر پیش رفت رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق
पंजाब भर में 15,000 प्राइमरी स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। रवां साल पंजाब भर के 2,400 बुनियादी मराकज सेहत को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताएं, इंडिया पाकिस्तान सोलराइजेशन प्रोग्राम पर पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताएगा, पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की गई है। जी बिल्कुल, नया पाकिस्तान सोलराइजेशन प्रोग्राम पर पेशरफ्त जो है वो जारी कर दी गई है। सूबाई वजीर जो है एनर्जी के पंजाब के अख्तर मलिक, उनके मुताबिक नए पाकिस्तान सोलराइजेशन से 29 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली जो है वो पैदा की जा सके। जबकि अख्तर मलिक ने यह भी बताया कि पंजाब भर में 15,000 प्राइमरी स्कूलों को सोलर एनर्जी पर जो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पहले मरहले में 7,000 स्कूल जो है सोलर पहले जो है मुंतकिल हो चुके हैं। जबकि आने वाले 2 माह तक में जो है अगले मरहले में 1,861 स्कूल जो है मुकम्मल तौर पर कर दिए जाएंगे। जबकि कोरोना की वजह से सोलराइजेशन का अमल भी जो है वो मुतासर हुआ है। जबकि अख्तर मलिक ने यह भी बताया कि नया पाकिस्तान सोलराइजेशन प्रोग्राम के तहत 18 लाख तलबा जो है पाकिस्तान के पंजाब के वो मुस्तफीद होंगे। जबकि अख्तर मलिक के मुताबिक रवां साल पंजाब भर के 2400 बुनियादी मराकज सेहत को जो है उनको भी जो है सोलर सेहत पर जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। जबकि अख्तर मलिक का कहना था कि पाकिस्तान बदल चुका है, नए पाकिस्तान में इदारे मजबूत हो रहे हैं, जबकि इंशाअल्लाह कौम की पाई की हिफाजत और दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। जबकि वजीर आजम इमरान खान के वीएन की तकमील के लिए दिन रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी आपका। अमरीकी ऐवान की कमेटी ने भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और मजहबी आजादियों पर लगी जरब पर तशवीश का इजहार किया है। कमेटी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश किया। अमरीकी ऐवान कमेटी ने वजीर खारिजा माइक पॉम्पियो से भारत के मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग की भी सिफारिश कर दी। अमरीकी ऐवान की कमेटी ने इस वक्त सिफारिशात कर दी हैं। समाजी राबतों की मकबूल वेबसाइट ट्विटर पर अमेरिका के अहम तरीन सियासी कारोबारी शख्सियात और कई मारूफ कंपनीज के अकाउंट्स को हैकर्स ने निशाना बनाया है और इन अकाउंट से जारी किए गए पैगामात से बिटकॉइन के जरिए रकम मांगी गई। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा, बिल गेट्स, डेमोक्रेट्स, सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन, एलन मस्क, जेफ बेजोस और समेत दीगर अहम शख्सियात के ट्विटर अकाउंट्स हैक किए गए। कारोबारी और सियासी शख्सियात के अकाउंट से ऐसे ट्वीट किए गए जिनमें इस बात का वादा किया गया कि जो भी शख्स 30 मिनट के दौरान बिटकॉइन के जरिए रकम भेजेगा वो दुगनी कर दी जाएगी। उबर और एप्पल ट्विटर हैंडल्स से भी ऐसे ही ट्वीट किए गए। जिन दीगर अहम शख्सियात के अकाउंट हैक किए गए उनमें वॉरेन बफेट, रैपर कानिये वेस्ट इंडीज और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर माइकल ब्लूमबर्ग भी शामिल हैं। बिटकॉइन वाली इन ट्वीट्स के सामने आने के बाद कुछ देर बाद ट्विटर से भी पैगाम आ गया जिसमें कहा गया कि कंपनी को इस वाक़े का इल्म है और वह इन तमाम अकाउंट्स का जायजा ले रहे हैं जो मुतासिर हुए हैं और उसकी तफ्तीश की जा रही है ताकि जल्द अज जल्द इस मामले को ठीक किया जाए ताकि इस अहम हैकिंग के कंपनी के शेयर 2.3% इस वक्त तक गिरा दिए गए हैं। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा, बिल गेट्स, डेमोक्रेट्स ने इस वक्त जो है ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर दिया गया और अब आपको बताएं कि ईरान की बंदरगाह पर खड़े 7 बहरी जहाजों में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने तवील जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई। मुल्क के जनूब में बुश शहर की बंदरगाह में आग लगने से 7 बहरी जहाज चल गए। जहाजों से उठता स्या धुआं दूर तक के इलाकों तक देखा गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मौसूल हुई। आग लगने की वजह से मालूम अभी तक नहीं की जा सकी, जबकि इससे कबल भी ईरान की कई हसास और दिफाई नौयत की तनसीबात में आग लगने के पुरअसरार वाकयात पेश आ चुके हैं। कराची वालों के साथ बिजली फराहम करने के दावे दिलासे सब बेकार हो गए। रोशनियों का शहर कराची बिजली की शदीद किल्लत का शिकार हो चुका है, जहां तलब और रसद का फर्क 3 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का एक ही राग है, कहीं लोड शेडिंग और कहीं लोड मैनेजमेंट के नाम पर 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। शेडिंग ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है। तमाम हुकूमती वादों के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद नहीं हो रहा। जलसे, जुलूस, एहतजाज और मुजाहरे भी किसी काम नहीं आए। कराची के शहरियों को अब भी बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का सामना है। शहर में बिजली के मजमूई तलब 3200 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक 1800 और निजी प्लांट 300 मेगावाट बिजली फराम कर रहा है, जबकि नेशनल ग्रिड के इलेक्ट्रिक को 800 मेगावाट बिजली की फरामी
फरामी जारी है। कराची को मजमूई तौर पर 2900 मेगावाट बिजली फरामी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मुरम्मती काम के बायस बिजली की फरामी मुअत्तल रहती है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नॉर्थ कराची, आदम टाउन, बफर जोन, सेक्टर 14B, लियाकताबाद नंबर 4 में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली फरामी मुअत्तल रहेगी। लांडी के 3 इलाकों में भी 8 घंटे बिजली की फरामी मुअत्तल रहेगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी ने भी आवाम को परेशान कर रखा है। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, अबुल हसन असफहानी रोड पर भी पानी की सप्लाई का ऑपरेशन मुतासिर है। के इलेक्ट्रिक के हाथों गर्मी में रात का चैन और दिन का सुकून गंवाने वाले शहरियों का मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के दफातर के सामने एहतजाज। बिजली बिल भेज देते हो, बिजली भी भेजो के नारे लगाते रहे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। मुतासरा इलाकों मलिर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, कोरंगी, लियाकताबाद शामिल है। आपको बताएं कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। मुतासरा इलाकों में मलिर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, कोरंगी और लियाकताबाद शामिल है। मजीद जानेंगे शाहिद शाह से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी, जिसमें गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, करीमाबाद, लियाकताबाद, अजीजाबाद, लांडी, कोरंगी, बल्दिया, लियारी, कुमारी और इसके अलावा जो है शाह फैसल कोरंगी है। इसके अलावा जो कोरंगी कराची में जो है भी रात जो है ना एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था के इलेक्ट्रिक की दफ्तर के सामने। इसके बावजूद जो है के इलेक्ट्रिक की गैर लोड शेडिंग का शिकार अभी भी लोग सामने आता है। इलाकाई फ्लैट के बहाने के बाद जो के इलेक्ट्रिक मुसलसल लोड शेडिंग कर रही है, जिसके बाद जो लोगों में बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा नजर आता है और खफ्त का आलम नजर आता है। मुतासर इलाके में जो है अभी भी जो है लोड शेडिंग कर दी गई है। 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और हुकूमत की जानिब से सिर्फ बातें और सिर्फ दावे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कराची के बासियों का जीना मुहाल हो गया। विफाकी वजीर के दावे हवा हो गए कि इलेक्ट्रिक के सीईओ ने भी लोड शेडिंग करने का एतराफ कर लिया। मोनस अलवी कहते हैं अब लोड शेडिंग वहां भी हो रही है जहां नहीं होती थी। विफाकी हुकूमत से अच्छे रवाबित हैं, मसाइल का हल निकाल रहे हैं। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की तरदीद भी करती। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। अगले साल गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त लोड शेड ज्यादा हो रहा है। उन इलाकों को जहां पे 8 घंटे की लोड शेडिंग हो है, उसको 8 घंटे पे लिमिट करने के लिए उन एरियाज में लोड शेड करें जहां पे हम लोड शेड नहीं करते। कराची का टैरिफ इस वक्त मुल्क से 2.5 रुपए कम है। 99% फैसले जो ओवर बिलिंग के होते हैं वो के इलेक्ट्रिक के फेवर में होते हैं। जमात इस्लामी ने विफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने एहतजाज की कॉल देते हुए कहा कि आज से कराची के मुख्तलिफ चौराहों पर धरने दिए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक हमारे 14 मुतालबात हैं, पूरे किए जाएं। असद उमर साहब ने कहा था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद जितनी लोड शेडिंग हो रही है वो सारी गैर एलानिया हो रही है। बिजली की फराहमी हाईली प्रोफेशनल वर्क है और इसको हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन और निस्कारी खत्म करके अपनी जिम्मेदारी को ऑन करना चाहिए। जो ये जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, के इलेक्ट्रिक की अपनी पुलिस बनाई हुई है। मतलब आप बदमाश इदारा है क्या है? कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आप लोड शेडिंग अव्वल तो करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो ये नहीं करेंगे कि इस आबादी से फला इतने बिल नहीं आते तो हम पूरी आबादी का कनेक्शन काट देंगे और लोड शेडिंग करेंगे। कहा यह गया है कि ये लोड शेडिंग इस तरह से आप कर ही नहीं सकते, इसलिए कि उस आदमी ने जिसने बिल अदा किया हुआ है उसका तो ये बुनियादी हक है ना कि उसको बिजली मिले। तो अगर किसी पड़ोसी ने नहीं दिया हुआ तो ये आपका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के बायस लियाकताबाद के मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। इस वक्त अता हुसैन एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। अता बताएगा बिजली और पानी के बगैर मकीनों का गुजर बसर कितना मुश्किल है?
جی بالکل، کراچی کے میں جو ہے کراچی کے جو شہری ہیں ان کو بجلی کے ساتھ ساتھ بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے بدستور جاری ہے. 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پانی بھی جو ہے پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے لوگوں کو. اس وقت میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے رہائشی ہیں ان کے گھر میں موجود ہوں اور ان کے پاس جاؤں گا, ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کو پانی اور بجلی نہ ہونے کے باعث جو ہے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ چند خواتین موجود ہیں جو کہ خاتون خانہ بھی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ لائٹ کتنی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں گے. لائٹ جاتی نہیں ہے, لائٹ مطلب آتی ہے, چلی جاتی ہے مطلب, تو پھر آتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بلی گالا میں لائٹ جاتی نہیں ہے اور یہاں آتی نہیں ہے. یہاں بجلی کا بھی اتنا ایشو ہے اور پانی کا بھی. پوری رات یہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے, دن میں 3-3 4-4 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے. اب جب لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر پانی بھی نہیں ہوتا. اب لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں, اتنی اوپر رہتے ہیں, کرایوں پہ رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے پانی کے نیوے ترستے ہیں. اور اتنی گرمی بڑھی اس کی وجہ سے کہ گھروں میں پانی بھی نہیں ہوتا کہ انسان ٹھنڈا پانی بھی پی لے فریج کا. ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اور یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ کتنے لوگ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی خواتین موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ پانی نہ ہونے سے جو ہے وہ کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے گھر میں. سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارے کو بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. نہ کپڑے دھلا سکتے, نہ بچوں کا منہ, اور اس سے جراثیم سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے. آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا, یہاں پانی بالکل نہیں آ رہا. یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے ہمارا پانی کے بارے میں. ہم اتنا باہر بھی نکلتے ہیں, جاتے ہیں, کوئی کمپلین ہماری نہیں سنی جاتی. بالکل, آپ نے ان لوگوں کی بات سنی کہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پانی نہیں ہوتا تو گھر میں کھانا بنانا ہے, یا چھوٹے بچے ہیں ان کے مسائل ہیں, بزرگ ہیں جو بیمار ہیں, ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی خاتون موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. مسجدوں سے بھر کے پانی لے کر آتے ہیں بہت دور دور سے, اور ہے نا بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے. کھانا بنانے میں پریشانی, بازار سے کھانا منگانا پڑتا ہے, پھر برتن دھونے کے لیے مسجدوں سے پانی بھرنا پڑتا ہے. آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ گھر میں پانی نہ ہو, بجلی نہ ہو تو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ کراچی کے بیشتر علاقوں میں جو ہیں وہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ فلیٹوں میں رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا گھروں میں حبس ہو جاتا ہے, بجلی نہیں ہوتی ہے. پھر ساتھ میں پانی کا بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ یہاں پہ کمپلینیں کرا کے تھک گئے ہیں, لیکن ان کی اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. جی صحیح, بہت شکریہ عطا حسین آپ کا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. گرمی میں جرمز کو کک آؤٹ کرا دے, کولنس کا گیم آن ہو. نیا ڈیٹول پروف ڈے, گرمی میں 99.9% بدبو پیدا کرنے والی جراثیم سے تحفظ دگنے مینتھول کے ساتھ. سارا جلدی, لیٹ ہو رہے ہیں. میرے بغیر نو سیلفی. Wait, no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, ہم کریں shine 24/7. Sunsilk Black Shine, اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کی طاقت کے ساتھ. یہ نرش کرے اندر تک تاکہ بال کریں shine 24 hours. تو اب میرے بالوں کا شائننگ گلو will never go. کیا آپ جانتے ہیں کہ جراثیم مختلف سطحوں پر 9 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ٹوائلٹ اور باتھ روم روزانہ ہمارے استعمال میں آتے ہیں اور جراثیم کے پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں. تحقیق نے ثابت کیا کہ ہارپک رینج ان جراثیم کا 99.9% خاتمہ کرتی ہے. اپنے ٹوائلٹ کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے استعمال کریں ہارپک پاور پلس, اور ہارپک باتھ روم کلینر سے بیسن, ٹائلز اور فرش پہ کریں جراثیم کا خاتمہ. تو آئے مل کر عہد کریں کہ رکھیں گے اپنے باتھ روم کو صاف اور جراثیم سے پاک. آپ نے اکثر مجھے لائف بوائے کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, پر آج میں کہوں گی کہ جو بھی صابن ہے آپ کے پاس اسے استعمال کریں, کیونکہ صابن سے ہاتھ دھونا کرونا وائرس کو پھیلنے سے روک سکتا ہے. ہاتھوں کی حفاظت, پاکستان کی حفاظت. آ گیا برابر والا عمر ہاسپٹل سے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں مہینے بھر تک اس کے گھر سے دور رہیں گے, گیٹ کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور ساری کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں. یہ تیسرا کپ کس کے لیے؟ عمر کے لیے. کیا؟ اسے اکیلے رہنے کے لیے کہا ہے, اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں. ہم دور رہ کر بھی اپنا پن
कैनन हुड और हॉब ने बनाई आपकी कुकिंग आसान। इटालियन डिजाइन बर्नर्स और इटालियन इग्निशन से मिले आपको बेहतरीन सहूलत। कैनन हुड, पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। हाथों को वॉश करके सेव कर लिया, अब फेस को भी रखो सेफ इंस्टेंटली फेयर एंड लवली फेस वॉश से। इसमें है मल्टीविटामिन का फॉर्मूला, विटामिन B3, C, E चेहरे को गहराई से साफ करे और रखे फेस को सेफ और ग्लोइंग। फेयर एंड लवली फेस वॉश। गर्मी में जर्म्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल डे गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ दुगने मेंथॉल के साथ। फैजू, अब्बू से कह दो चाय बन रही है। फैजू, अम्मी से कहो इसकी कोई जरूरत नहीं, अब्बू की मीटिंग है, ऑफिस में पी लेंगे। अच्छा सर, जी जी कोई बात नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो चाय चल जाएगी। लगता है अब्बू चाय का रंग देख के ये भूल गए कि उनके हाथ में फोन किसका है। एक कप आपके लिए भी बनाई। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, जो दे ऐसा सुनहरा रंग कि देखते ही दिल में उतर जाए। क्या आप जानते हैं कि जरासीम मुख्तलिफ सतहों पर 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। टॉयलेट और बाथरूम रोजाना हमारे इस्तेमाल में आते हैं और जरासीम के फैलने का सबब बन सकते हैं। तहकीक ने साबित किया कि हार्पिक रेंज इन जरासीम का 99.9% खात्मा करती है। अपने टॉयलेट को जरासीम से पाक रखने के लिए इस्तेमाल करें हार्पिक पावर प्लस और हार्पिक बाथरूम क्लीनर से बेसन, टाइल्स और फर्श पे करें जरासीम का खात्मा। तो आए मिलकर अहद करें कि रखेंगे अपने बाथरूम को साफ और जरासीम से पाक। हे सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, I've no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। भाई ने आज 5 गोल मारे हैं। सेलिब्रेट कैसे किया था? आओ दिखाऊं। एक हाथ ऐसे करो और दूसरे से नाक पकड़ो। गर्मी में जर्म्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल डे गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ दुगने मेंथॉल के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, समंदर किनारे आबाद कराची के प्यासे शहरियों की सुनी गई। हुकूमत सिंध ने MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान को अहदे से हटा दिया। खालिद महमूद शेख को MD वाटर बोर्ड बना दिया गया। ग्रेड 19 के खालिद महमूद शेख को ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं, समंदर किनारे आबाद कराची के प्यासे शहरियों की सुनी गई है। हुकूमत सिंध ने MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान को अहदे से हटा दिया। खालिद महमूद शेख को MD वाटर बोर्ड बना दिया गया, जबकि ग्रेड 19 के खालिद महमूद शेख को ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी पानी का बहरान सर उठाने लगा। शहरी कहते हैं कई दिन सप्लाई का पानी नहीं आता। पानी टैंकर मंगवाएं तो फी टैंकर 2000 से 3000 तक वसूल किए जाते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। इस्लामाबाद कहलाने को तो विफाकी दारुल हुकूमत कहलाता है, मगर अवामी नुमाइंदों की गफलत और लापरवाही ने इसकी हालत पसमानदा इलाकों सी बना दी है, जहाँ के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत को तरस रहे हैं और पानी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। I-10 सेक्टर के शहरी कहते हैं पानी का बड़ा मसला है, क्या करें कहाँ जाएं? यहाँ पानी का इतना इशू है, यकीन में करबला बना हुआ है। ये आप सामने देखें, ये फिल्टर है, यहाँ से हम पानी भर के लेके जाते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए, वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए, हालांकि पीने का पानी है।
लेकिन घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और इतने लोग तंग हुए हैं, इतने चीज़ साफ कोई नहीं है। I-10 में ये इशू काफ़ी अरसे से है कि पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो मैं जिस सब सेक्टर में रहता हूँ I-10 2 में, तो उस साइड पे थोड़ी सी बेहतर है। I-10 1 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत मतलब इशू है, सही सप्लाई नहीं आती। शहरियों का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे नजर ही नहीं आते, कोई पुरसाने हाल नहीं। ना असद उमर साहब वोट लेने के बाद इस इलाके में आए और ना उनका पीए रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो थोड़ा बहुत पानी सेक्टर में आता भी है वो फिर इन्हीं MCI के स्टाफ के हाथों आगे इलीगल लाइंस के थ्रू बिक जाता है। यहाँ पानी तो है ही नहीं, तो पानी अगर कंप्लेन करवानी हो तो सुबह 4 बजे लोग लाइनों में लग जाते हैं, वो भी फिर नंबर लगते हैं, कोई तरीका कार नहीं है उसका। तो टैंकर वाले से पानी लेना हो तो यही लोग जो है कंप्लेन भिजवाते नहीं है पानी उस तरह, और वैसे टैंकर वाले को पकड़ के 1000-2000 रुपया दें तो फिर वो पानी दे के जाता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सेक्टर्स का पानी चोरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों की अवामी नुमाइंदों और आला हुकाम से एक ही दुहाई है कि I-10 को पानी दो, पानी दो। शहरी कहते हैं कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत को खरीदने पर मजबूर है। टैंकर माफिया का राज है, एक टैंकर 3 से 4 हजार में बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुश्किलात और बहरानों ने कराची का रास्ता देख लिया। बिजली, पानी और अब आटा बहरान दस्तक देने लगा है। कराची में आटा 62 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सिंध सरकार और जिला इंतजामिया की नाअहली और अकरबा परवरी ने कराची वालों का जीना मुश्किल बना दिया। कराची वालों को बहरानों ने घेर रखा है। बिजली और पानी बहरान से नबर्द आजमा कराची वालों को आटा बहरान घेरने लगा। कराची में आटे की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया। अब कराची वालों को 62 रुपए फी किलो आटा खरीदना होगा। सरकारी रेट लिस्ट को दीवार से टांग दिया गया। दुकानदार मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर में बुरहान के बाद बुरहान चले आ रहे हैं, लेकिन सिंध सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आटे और गंदम की खरीदो फरोख्त के हवाले से कीमतों के तयन के लिए सूबे में राज मैकेनिज्म हुकूमत की कमजोर रेट के बायस खत्म हो गया है। इस वक्त हर दुकानदार आजाद और आटे की कीमत में मन चाहे इजाफे कर रहे हैं। कराची में मौसर प्राइस कंट्रोल हिकमत अमली की अदम मौजूदगी में दुकानदार जब चाहे आटे की कीमत में भी इजाफा कर देते हैं। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन न लिया तो आटे की कीमत आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी। इंतजामिया चाहे कुछ भी कर ले, हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन दूध की कीमत कम नहीं करेंगे। हैदराबाद की डेयरी एंड कैपिटल फार्म्स एसोसिएशन ने फैसला सुना दिया है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि दूध देने वाले जानवरों की खुराक और अद्वियात की कीमतों में 50% इजाफा हो चुका है। लागत बढ़ने की वजह से दूध की पैदावार भी कम हो गई है। हमें दूध 100 रुपए से जायद का पड़ रहा है, जबकि जिला इंतजामिया दूध 97 रुपए फी लीटर फरोख्त के लिए दबाव डाल रही है। इंतजामिया कार्रवाई करती है तो करे, कीमत कम नहीं करेंगे। लाहौर में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज समेत तमाम सब्जियां महंगी हो गई। शहरी कहते हैं हर साल ईद कुर्बान से कबल गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले लवाजमात महंगे करके उन्हें लूटा जाता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। शहर में ईद उल अजहा से कबल लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज समेत तमाम सब्जियां महंगी हो गईं। टमाटर 80, लहसुन 250 और अदरक 400 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हर साल ईद कुर्बान से कबल गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले लवाजिमात महंगे करके उन्हें लूटा जाता है। तो अल्लाह सुनने वाला है, क्या होगा? गरीब इनको परवाह नहीं है, ये अपनी सियासत के जिम्मे में पड़े हैं। कभी उनको बुरा कहते हैं, उनको बुरा कहते हैं। मर हम लोग रहे यहाँ पहले डबल रेट हो गए, हर चीज़ की डबल रेट। 15 रुपए होता था ये टमाटर, अब 150 रुपए में चला गया। खरीदारों का कहना था कि जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जाएगी, सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। इसको कंट्रोल किया जाए, कीमत कम रखी जाए। हाँ जी, तो आम आदमी जो गरीब आदमी इससे पहुँच से दूर है। महंगाई के मारे आवाम का मुतालिबा है कि हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे और सब्जियों की कीमतें कम करके शहरियों को रिलीफ फराहम करे। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई को। हर सूरत में लोग परेशान हो रहे हैं। चेक एंड बैलेंस तो है कोई नहीं, कोई पूछने वाला है, जो जिसका दिल करे बढ़ती रेट लगा ले, इसलिए आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना था कि इस महंगाई का नोटिस लेने वाले जिलाई हुकूमत के नुमाइंदे एयर कंडीशन कमरों में बैठकर महंगाई से बिलबिलाती शहरियों की अहो बका सुनते हुए तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। कहीं भी हुकूमती रेट कायम होती नजर नहीं आ रही। शहरियों का कहना है कि लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम करे।
ताकि वो बआसानी इन अशिया की खरीदारी कर सकें। कैमरा मैन निशान राहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद के शहरियों की भी महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। शहरी कहते हैं इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब तो गरीब, मुतवस्सत तबका भी पिस कर रह गया है। हुकूमत को सब्जियों, फलों और दीगर जरूरत की अशिया के डीलर्स और सप्लायर्स पर कड़ी नजर रखना चाहिए। भी हुकूमतें गुजरी हैं, उस दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब महंगाई हो रही है, और अमीर बंदा भी उसकी कमर भी टूट गया, गरीब की तो टूटी है। गरीब तो बिल्कुल किसी काबिल रहा ही नहीं, क्या करेगा। एक बंदे का किराए का मकान हो, रोजगार ना हो, महंगाई है, खाना तो है, पेट के लिए खाना है, तो इससे यही होगा, वो चोरी चकारी भी करेगा, उल्टे सीधे काम भी करेगा। ये महंगाई पे अगर कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमजोरी है, कारोबार है नहीं है बिल्कुल, तो हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। आज से अगर आप 3 या 4 साल पहले देखें तो कुछ हालात कुछ बेहतर थे। अब महंगाई की वजह से सारी बात है, गरीब का तो घर भी अब नहीं चल रहा, वो बेचारा बचत क्या करेगा। और बाकी जहाँ तक ये महंगाई होती क्यों है करके, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग भी सप्लायर्स हैं, जो भी मिडल मैन है, उनको कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश करे कि जब दिल किया तो सप्लाई शॉर्ट कर दिया, चीज़ें महंगी कर दी। चीज़ें महंगी होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो तो गरीब ही होता है। खबर दें आपको, कराची डिफेंस में घरों में डकैती की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। SSP साउथ के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और गुजरी से छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली गई। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। मज़ाहिर बताएगा गैंग को कहां से गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की ये कार्रवाई जो है वो डिफेंस फेज 2 एक्सपेंशन में अमल में आई थी, जहां उन्होंने कार्रवाई करके जो है वो 4 जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान में कामरान, रामचंद, सोमो और रियाज अली शामिल है। SSP साउथ शराब नजीर का कहना ये कि मुल्जिमान के कब्जे से छीनी गई गाड़ी और असला और रकम जो है वो बरामद की गई है, जबकि मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किए गए। मुल्जिमान जो है वो डिफेंस से मुख्तलिफ घरों में डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मज़ाहिर सईद हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ओगरा ने गैस कंपनी स्विस सदरन और नॉर्दर्न के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LNG की कीमतों में इजाफा जुलाई के लिए किया गया है। इतलाक 1 जुलाई से होगा। ओगरा ने गैस कंपनीज के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए LNG की कीमत में $0.45 और सुई सदरन के लिए LNG की कीमत में $0.40 फी MMBTU का इजाफा किया गया है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई में सुई नॉर्दर्न के लिए LNG की कीमत $6.60 और फी MMBTU और सुई सदरन के लिए LNG की कीमत $6.65 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। इससे कबल जून में सुई नॉर्दर्न के लिए दरामदी LNG की कीमत $6.12 फी MMBTU और सुई सदरन के लिए $6.27 फी MMBTU मुकर्रर की गई थी। के बाद आपको बताएं, कोरोना के बायस खौफ के बादल छटने लगे। सऊदी अरब में जिंदगी मामूल की जानिब लौटने लगी। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने तफरीह सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने कोरोना की वबा से तातुल का शिकार तफरीही मराकज़ की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में पुरअमन और महफूज तफरीह हैशटैग के उन्वान से सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में होने वाली तफरीही सरगर्मियों की तफसीलात भी बताई जाएंगी। सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने तफरीही सरगर्मियों की बहाली के लिए SOPs भी वाज़ेह कर दिए। तफरीही सरगर्मियों के दौरान समाजी फासला, मास्क पहनना, मुकर्रर करदा रास्तों पर चलना और तफरीही सरगर्मियों का तयन करना और बाहिमी फासला कायम रखना जैसी शराइत शामिल की गई हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में दरियाए रावी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से दरियाए रावी पर बनाया गया हिफाजती बंद भी टूट गया है, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। मजीद जानेंगे असद राजपूत से। असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में दरियाए रावी मलफतियाना के मुकाम पर जो है 18,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है, जिससे मुकामी आबादियों और जो है जिम्मेदारों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। नुकसान से जो है वो 500 से ज़ायद एकड़ जो है अराजी वो ज़ेर आब आ गई। तो बात भी करेंगे, एक किसान हमारे साथ मौजूद है, उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना ये चाहूँगा कि ज़िम्मेदारों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत एक यहाँ पे बंद बनाया था, जो सिर्फ 18,000 के पानी के रेले से टूट गया और 500 एकड़ रकबा जो ज़ेर आब आ गया, जिसमें कमान, चारा और मुख्तलिफ फसलें काश्त की थी।
जिम्मेदार की जो फाइनेंशियली पोजीशन है उसका सबको पता है। तो इसमें से अक्सरियत जिम्मेदारों ने बैंकों से लोन लिए हुए थे और उनसे खर्चा करके इन्होंने अपनी फसलों को तैयार किया था। अब वो बैंकों के लोन भी अदा करने पड़ेंगे, जो बैंक को लोन लेते वक्त इंश्योरेंस लेते हैं वो भी अदा किए, अभी ऊपर से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसका जो है इनकम टैक्स, जो हमारी फसल सब नुकसान हो चुकी है, इसका इनकम टैक्स भी जिम्मेदार को देना पड़ेगा और इसके अलावा ज़राई टैक्स भी देना पड़ेगा। हमें इंतजामिया से गुजारिश है कि जो फसलें नुकसान हुई हैं इनका सर्वे करें और इसका जो कम से कम टैक्सेस और इन चीज़ों से तो जिम्मेदार की जान चढ़ाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो यहाँ पर विज़िट करके मुकामी ज़िम्मेदारों की जितनी फसलें जो है उनका नुकसान हुआ है वो उनका उजाला किया जाए। जी बहुत शुक्रिया असद खान आपका। लाहौर में जिला हुकूमत की सस्ती की और सुस्ती की वजह से मवेशी मंडियां फाल ना हो सकी। शहरियों में लगी गैर कानूनी मंडियों पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर खत्म करने का भी हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। मवेशी मंडियों को फाल करने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर इंतजामात मुकम्मल न होने के बाइस मंडियों की जगहों पर धूल और मिट्टी ही नजर आई। शाहपुर कांजरे की मंडी में रश बढ़ने के बाइस कोरोना वायरस का खतरा भी बढ़ गया। दूसरी जानिब गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। सूबे भर की इंतजामियों को फौरी तौर पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शहरों के अंदर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर गैर कानूनी मंडियां खत्म करने का हुक्म दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने जारी हदायत में कहा कि सूबे भर की इंतजामिया गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन करे। गली मोहल्लों में लाने वाले जानवरों को शहर से बाहर मवेशी मंडियों में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाना है। मवेशी मंडियों के हवाले से भी इंतजामिया SOPs की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। पेशावर की मवेशी मंडी में कोरोना और कांगो जैसी मोहलिक वबा से बचाव के लिए मंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप फाल कर दिया गया, जहां पर मवेशी भी लाए गए हैं और जानवरों पर स्प्रे और मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान से पहले ही जिला इंतजामिया की जानिब से पेशावर की जितनी भी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं उनके बाहर जो है लाइफ स्टॉक की जानिब से मेडिकल कैंप जो है वो लगा दिया गया है, क्योंकि SOPs की पर अमल दरामद करने के लिए जिला इंतजामिया ने मंडियों के बाहर जो है वो मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया था, जिसमें तमाम तर जो भी जानवर जो है वो मंडी में दाखिल होंगे बाकायदा तौर पर उनका पहले ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा, उस पर स्प्रे किया जाएगा और उसके के बाद उनको मंडी में जाने की इजाजत दी जाएगी। इस वक्त मेरे साथ लाइफ स्टॉक के डॉक्टर तुफील हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर क्या कहेंगे, मेडिकल कैंप लगाया गया है, बुनियादी मकसद क्या है और किस वजूहात पे लगाया गया है? सर जो कोरोना का मसला चल रहा है सारे पाकिस्तान में चल रहा है, बल्कि सारे वर्ल्ड में चल रहा है, तो इसके लिहाज से मंडियों में एक तो रश होता है, जानवर आते हैं, उसके साथ लोग भी आते हैं, तो जो हुकूमत ने जो प्रोटोकॉल यहाँ पर बताया हमें उसी के मुताबिक हम लोगों को समझाते हैं और उसी के मुताबिक यहाँ पर अमल होता है। एक तो ये कि यहाँ बच्चे जो आते हैं लोगों के साथ हम उनको नहीं छोड़ते। दूसरा ये किसी ने मास्क नहीं लगाया उनको मास्क लगा देते हैं। तीसरा ये कि जो जानवर यहाँ से गुजरते हैं उसमें फर्ज किया जुए या टिक्स हैं, चीचड़ हैं, तो उस पर स्प्रे करते हैं। ये सामने दवाई हमारे से पड़ी है। इसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह रखे हुए हैं को, उसमें जुएं होती हैं और इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसको यहाँ पे क्लियर किया जाता है। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आपको बता सके तो बाकायदा तौर पर बाहर जो है वो सैनिटाइजर सामान रखा गया है, स्प्रे का सामान रखा गया है, वक्तन जो है मंडी में जाकर जो है स्प्रे का काम भी करते हैं ताकि जो कोरोना जैसी वायरस मुल्क में फैला हुआ है इसका जो है वो खत्म किया जा सके। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों की पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, तो जो बच्चे हैं वो भी काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने वालिदैन के साथ जाएं ईद की कुर्बानी के लिए, जो जानवर खरीदते हैं वो उनके शाना बशाना हो, मगर इस बार बच्चों को थोड़ा सा मायूसी के आलम में हम देख रहे हैं कि बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा जा रहा और SOPs पर जो है वो काफी अच्छा खासा अमल दरामद जो है वो होता हुआ मंडियों में दिखाई दे रहा है। सही, बहुत दीगर शोबाजात की तरह शोबा सहाफत से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। ऐसे ही एक फोटो जर्नलिस्ट से मिलवा रहे हैं शाहिद एजाज। ये शख्स 4 साल पहले तक एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था कि अचानक बदकिस्मती की दस्तक ने इस नामवर और कैमरामैन सफीर को न सिर्फ बेरोजगार कर दिया बल्कि इसकी जिंदगी ही वीरान कर दी। मीडिया की लाइफ में अपने कहते हैं ना कि आज मैंने एक बम ब्लास्ट कवर किया, सही है, कल दूसरे कोई पैकेज में मुझसे एक चीज मिस हो गई तो वो मेरा कल वाला ब्लास्ट किल हो जाता था।
आज की गलती मेरी नज़र आती थी, सफ़ीर साहब आपने ये नहीं किया, तो रोज़ खड्डा खोदना है, पानी पीना है, वो हिसाब होता था। सफीर की फैमिली ने कभी फाके तो नहीं किए, लेकिन बच्चों को ऐसा खाना खिलाया जिसका सफीर ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। पानी के साथ रोटी खाइए, दूसरे टुकड़ों का सालन बना के खाया। कभी किसी के ब्लाक उठाने होते थे, कभी किसी के घर का सामान उठाना होता था, कभी प्लम्बरिंग का काम करना होता था, कभी किसी की गाड़ी धो ली, इस तरह कमाता था। सफीर ने 4 साल बेरोजगारी के बाद कैमरे को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और रक्षा चलाने लगा। ये रक्षा भी सफीर की मलकियत नहीं बल्कि इकसाद पर है, जिस 1.25 लाख की अदायगी अभी बाकी है। मीडिया इंडस्ट्री में जारी शुदा बहरान की वजह से सहाफी बिरादरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सफीर भी दीगर मीडिया वर्कर्स बेहतर मुस्तकबिल की दुआ करता है। दूसरों के मसाइल उजागर करने वाला सफीर आज अपने ही मसाइल के पहाड़ों तले दबा हुआ है। कैमरामैन सदान खान के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। हुकूमत पंजाब की जानिब से रुई की 70 लाख गांठों के हुसूल का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि सफेद मक्खी, सब्ज तीला और थरपस भी कपास की फसल पर हमलावर हैं। ऐसे में किसानों को अपनी फसल की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात और महकमे ज़राअत की सिफारिशात पर अमल दरामद की जरूरत है। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। हुकूमत पंजाब की जानिब से रुई की 70 लाख गांठों के हुसूल का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। फील्ड फार्मेशंस को खुसूसी अहकामात दिए गए हैं कि वो फील्ड में जाकर किसानों की रहनुमाई, फसल की निगहदाश्त और बेहतर मैनेजमेंट बारे अपना किरदार अदा करें। इस मरतबा कपास की फसल पर बीमारियों के हमले के साथ साथ सफेद मक्खी, सब्सतेला और थ्रिप्स का हमला भी देखने में मिल रहा है, जिसके तदारुक के लिए सेक्रेटरी ज़राअत वासिफ खुर्शीद की जानिब से कायम करदा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हर 15 रोज बाद अपने मुनक्किदा इजलास में जो सिफारिशात मुरतब करती है उस पर अमल करना निहायत जरूरी है। जो भी कीड़ा मुआशी नुकसान दे हद पे हो उसके खिलाफ मकामी जरी माहिरीन के मशवरे से स्प्रे करें। स्प्रे तरजीहन शाम के वक्त करें और जो भी जरी जहर सिलेक्ट करें वो फायदेमंद कीड़ों को नुकसान ना पहुंचे। महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक किसान फसल के लिए नुकसानदेह हद तक पहुंचने के बाद ही स्प्रे करें। बिला जरूरत और ज्यादा मिकदार में स्प्रे करना फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हफ्ता में कम अज कम 2 मरतबा फसल का मुआयना किया जाए। महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली टेक्निकल रहनुमाई में नोजल स्प्रे मशीनरी और फवार की दुरुस्तगी के साथ साथ ज़रई जहरों बारे भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं, जिसके लिए टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। किसानों को चाहिए कि बारिश के पानी की निकासी के लिए हंगामी इकदामात करें और नुकसानदेह जड़ी बूटियों को गोडी या स्प्रे करके तल्फ कर दें। हुकूमती काविशों के साथ साथ किसानों को भी पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत के साथ ताउन की जरूरत है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। सख्त धूप और हव्स में धान की पनीरी को खेतों में मुंतकिल करने का काम इंतहाई मेहनत तलब है। किन किन मराहिल से गुजरकर चावल की फसल तैयार होती है, बता रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद पार्टी। हिम्मत हो तो देती है सदा खुद मंजिल, हौसला हो तो कोई राह दुश्वार नहीं। इस शेर की अमली तस्वीर खेतों में काम करने वाले बच्चे और खवातीन हैं, जो पनीरी का तिनका पूरे खेत में लगा रहे हैं। गर्मी और हबस ज़दा माहौल में दिन भर पनीरी उखाड़ना और खेतों में लगाना एक इंतहाई मुश्किल और तकलीफदेह काम है, मगर पेट की आग बुझाने के लिए इन बेचारों को ये काम करना पड़ता है। धान लाना बड़ा मुश्किल है पिया, एक तीला करते लविंदा है, शाम को मजदूरी पूरी नहीं होती, सारा दिन धोपते करिंदा है। ते जट्टां दा ही कुछ नहीं बनता, साडा ही कुछ नहीं बनता, ना दा कुछ बन सी तां ही साडा कुछ हो सी ना। भाई ये बीजा पटना बड़ा औखा है, गर्मी दे विच छोटे छोटे गड्डियां बने नहीं आए, पटे नहीं आए। सच न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच tv.pk और देखते रहिए सच।